رانا صاحب سر شروع اپنا کام کریں پلیز والا کام نہیں ہے یہاں سات کے بعد 5 ہو گئے، 5 کے بعد 4 اور آج معلوم ہوا ہے کہ 4 میں سے بھی ایک معزز محترم جج جمال ممدوح صاحب نے سماج سے معذرت کی ہے، لیکن انہوں نے جس بنیاد پہ معذرت کی ہے وہ سپریم کورٹ کے ایک سینئر معزز جج ہیں، ان کی بات پہ ہم سب کو اعتبار ہے، اعتبار ہونا چاہیے، یقین ہے، یقین کرنا چاہیے۔ انہوں نے اپنے اختلافی نوٹ میں جو باتیں لکھی ہیں وہ انتہائی افسوسناک اس حوالے سے نہیں کہ یہ انہوں نے اختلافی نوٹ دیا ہے، افسوسناک اس حوالے سے کہ اگر انصاف کے اعلیٰ ترین منصب کے اوپر بیٹھے لوگ جو ہیں وہ ان رویوں کا اظہار کریں گے، جو رویہ انہوں نے اس میں بیان کیا ہے کہ فیصلہ لکھتے وقت مجھ سے مشاورت نہیں کی گئی، میری رائے ہی نہیں لی گئی اور فیصلہ جو ہے وہ تحریر کر دیا، یہ انتہائی جو ہے وہ افسوسناک بات ہے۔ یہ ایک قومی کھانے سے کم یہ بات نہیں ہے، یہ آج پوری قوم کو، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو بعض ہیں، جو بعض کی منتخب لیڈرشپ ہے، یہ ان کے لیے سب سے پہلے یہ المیہ ہے کہ یہ بات جو ہے وہ سامنے آئی۔ دوسرا المیہ یہ ہے کہ قاضی فیض عیسیٰ کی سربراہی میں ایک لارجر بینچ نے جو ہے وہ فیصلہ لیا، فل بینچ، لارجر بینچ نے، اور انہوں نے 100 ووٹوں کے متعلق ایک بڑا مفصل فیصلہ دیا۔ وہ ایک عدالت کا فیصلہ ہے، وہ سپریم کورٹ کے ایک معزز جج کا فیصلہ ہے۔ قانون کے ایک ادنا طالب علم کے طور پہ میں نے آج تک یہ بات نہیں سنی کہ سپریم کورٹ کے بینچ کے فیصلے کو سرکل کے ذریعے سے جو ہے وہ ان افیکٹو کر دیا جائے، یہ بھی آج ہوا ہے۔ اور رجسٹرار ہائی کورٹ نے، جس کی میں سمجھتا ہوں کہ ایک معزز جج یا ایک سپریم کورٹ کے بینچ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کی رجسٹرار کے طور پہ جو حیثیت ہے وہ اپنی جگہ پہ وہ قابل عزت ہے، لیکن ایک سپریم کورٹ کے بینچ کے مقابلے میں ان کی رائے اور ان کا سرکل، اور اس سرکل کے ذریعے سے سپریم کورٹ کے بینچ کو جو ہے وہ ان افیکٹو کر دیے گا، ان کے فیصلے کو۔ انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ یہاں پہ لاگو ہوتا ہے، وہاں پہ نہیں ہوتا، وہاں پہ ہوتا ہے، وہاں پہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے جبکہ وہ فیصلہ جو ہے وہ فیلڈ ہولڈ کر رہا ہے، سپریم کورٹ کے اس بینچ کا فیصلہ جو قاضی فیض عیسیٰ کی سربراہی میں قائم تھا، اس نے جو فیصلہ سنایا ہے، وہ فیصلہ جب تک اس سے بڑا بینچ یا وہ فیصلہ چیلنج نہیں ہوتا، اس وقت تک وہ فیصلہ فیلڈ ہولڈ کرے گا، وہ سب پہ پابند ہوگا، وہ ایک سرکل کے ذریعے سے جو ہے وہ اس کو ان افیکٹو جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور اگر یہ پریکٹس ہو تو پھر تو سرکل تو پھر جاری ہونے شروع ہو جائیں گے، یہ پھر کوئی اور ڈویژن بھی جو ہے وہ سرکل جو ہے وہ جاری کر سکتا ہے، کوئی جو ہے وہ کسی منسٹری کا جو ہے وہ ڈویژن وہ بھی سرکل جاری کر سکتا ہے۔
हम भी जो है वो रोज़ सर्कुलर जारी करते हैं। ये इंतहाई अफसोसनाक और एक जो है वो अंजी की बात है। इसी तरह से एक बतौर कानून के एक तालिब इल्म के मैंने ये आज तक नहीं सुना कि कोई मुअज़्ज़ज़ जज किसी काज के ऊपर रिफ्यूज़ कर जाए और उसके बाद वो दोबारा काज अगर समाप्त करिए तो दोबारा उसमें बैठ जाए। ये भी कभी नहीं हुआ। इस बेंच में जो कि 9 से शुरू हो के अब 3 पे आ गया है, इसमें एक मुअज़्ज़ज़ जज जिनका मुझे बेपनाह एहतराम है उनकी ज़ात का, लेकिन मैं उनके फैसले की बात कर रहा हूँ। ये उनका फैसला भी कि जब उन्होंने पहले रिफ्यूज़ किया एक मरतबा, बेंच से अलहदा हुए और उसके बाद जो है वो अब ये दोबारा जब काज आया तो अब वो बेंच का जो है वो दोबारा हिस्सा है। ये चीज़ें जो हैं जिनका मैंने जिक्र किया है, कुछ और चीज़ें भी हैं जो इससे मुतल्लक जो है वो जिनके ऊपर बात की जा सकती है, लेकिन मैं मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो कि पूरी कौम के बड़े हैं, जिनसे पूरी कौम को तवक्को है कि वो एक बहरानी कैफियत है जो एक फ़र्द वाहद ने जो फितना है, उस फितने ने 10 साल मेहनत की है। 2014 से वो शुरू हुआ है और ये 2023 में आके उस फितने ने मुल्क को इस जो है वो नहज पे ला के खड़ा कर दिया। सियासी तौर पे बहरान, इंतज़ामी तौर पे बहरान और जुडिशरी को भी उसने बहरान में मुब्तला कर दिया। मुआशी तौर पे बहरान ये भी उसी का पैदा करता है। यानी वो फितना जो है वो एक बहरानों का मंबा है। हर बुराई, हर बहरान उससे जन्म लेता है। ये जो बहरान है जो जुडिशरी में है, जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, इसका भी माखज़ वही है। हर बुराई उसी से शुरू होती है, उसी पे जाके ख़त्म होती है। अगर काजी फैज़ ईसा के ऊपर जो है वो रेफरेंस दायर ना किया जाता और काजी फैज़ ईसा की फैमिली को इन्हीं कोर्ट में और इन्हीं सड़कों पे और ये एफबीआर के डंडन में जो है वो रुस्वा ना किया जाता, उन्हें जो है वो उन बिल्डिंगों पे जो है वो रुलाया ना जाता, तो शायद बल्कि मुझे तो यकीन है कि ये पुरानी कैफियत का ये पुरानी कैफियत भी उसी फितने के जो है वो अमल का जो है वो है। और ये जो असम्बलियों का बहरान ये भी उसने तोड़ी। मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये अपील करूँगा कि अब इस बात का जायज़ा लेना ज़रूरी हो गया है कि ये फितना जो है ये किस तरह से इस मुल्क में जो है इंट्रोड्यूस हुआ और किस तरह से पिछले 10 सालों से इस मुल्क को जो है वो बहरान दर बहरान जो है वो का शिकार कर रहा है और ये चाहता है कि इस मुल्क में अफरा तफरी हो, इस मुल्क में अनारकी हो और खुदा न खास्ता मुल्क का जो है वो नुकसान हो। इस बात का भी जायज़ा लें कि इसने जो 10 सालों में किया है, इसके तमाम इक़दामात और ख़ास तौर पे ये असम्बलियाँ तोड़ने का इक़दाम जो है, इसके पीछे जो है वो कौन है। ये असम्बलियाँ आइनी तौर पे नहीं तोड़ी गई। ये असम्बलियाँ दोनों जो सूबों के बुज़रा आला थे उन्होंने नहीं तोड़ी। वो बेबांगे तोहर कहते रहे कि हम नहीं तोड़ना चाहते, NPS कहते रहे हम नहीं तोड़ना चाहते। ये इस फितने की धौंस थी, इसका तकब्बर था, इसकी ज़िद थी, इसका प्रोग्राम था या इसका एजेंडा था कि इसने जो है ये असम्बलियाँ तोड़ी। इस बात का जायज़ा लिया जाना चाहिए। जब ये 9 रुकनी बेंच बैठा था तो एक मुअज़्ज़ज़ जज ने ये मामला जो है वो उठाया भी था। तो मैं अब आखिर में ये अपील करूँगा तमाम मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान से, बिलअमूम और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से बिलखुसूस। माशाअल्लाह वो बहुत समझदार, बड़े बैलेंस, बड़े दाना इंसान हैं कि इंसाफ होना नहीं चाहिए, इंसाफ होता नज़र आना चाहिए। ये आप ही का
बनाया हुआ जो है ये कौल है, इन मुअज़्ज़ज़ अदालतों में बैठे हुए बड़ों का बनाया हुआ कौल है। ऐसी सूरत हाल में अब अगर फुल बेंच बैठ के इस मामले को डिसाइड नहीं करेगा, इंसाफ तो शायद हो, मैं तवक्को करता हूँ कि आप इंसाफ ही करेंगे, लेकिन इंसाफ होता नज़र नहीं आएगा। और कौम को अगर इस मरहले पे इंसाफ होता नज़र ना आया तो ये मुल्क अफरा तफरी और अनाकी का शिकार हो जाएगा। जो उस फितने का एजेंडा है वो पूरा हो, आप उसका हिस्सा ना बनें, आप कौम को अनाकी की तरफ ना धकेलें। आप या तो फुल बेंच बनाएं और इस मामले को जो है वो इस तरह से डिसाइड करें